નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે આપણે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા માધ્યમિક ચિત્રકામ પરીક્ષાઓ જે લેવાય છે એમાં માનવ ચિત્ર સંયોજન વિશે વાત કરવાના છીએ. આપણી સાથે ચિરાગભાઈ સુથાર જોડાયા છે, જેઓ ચિત્ર શિક્ષક છે અને પોતે 15 વર્ષથી ચિત્રકામ સાથે જોડાયા છે, જેઓ આણંદ જિલ્લાની આકલાવ હાઈસ્કૂલમાં પોતાની ફરજ બજાવે છે. ચિરાગભાઈને કહીશ કે આપ ચિત્ર દોરી બતાવો. ચોક્કસ, એને સરળતાથી કેવી રીતે દોરાઈએ એને હું દોરીને સમજાવીશ બાળકોને.
छोटी छोटी नानी नानी छोटी छोटी। માનવ આકૃતિ 1 થી 8 ભાગમાં ચહેરા જેટલા આંખ ભાગમાં વહેંચેલા છે. એમાં 1 થી 8 ભાગ સરખા બનાવી દેવાના આ રીતે. એના પછી આપણે આ રીતે આડી લીટી દોરી અને 8 ભાગમાં વહેંચી દઈશું. ત્યાર પછી પ્રથમ ભાગમાં આપણે ઈંડા આકાર ગોળ એટલે કે મોઢાનો ભાગ, બીજા સ્ટેપ સુધી ખભાથી લઈને છાતી સુધીનો ભાગ આવશે અને ત્રીજો ભાગ જે છે એ કોણી સુધીનો આવશે. ત્યારબાદ ચોથા સ્ટેપમાં માનવ આકૃતિનો કાંડા સુધીનો હાથ સુધીનો ભાગ આવશે અને પગની ઢીંચણ એ આપણે અહીં સુધી દોરીશું 5મા સ્ટેપમાં. ત્યારબાદ આ રીતે એનું ફૂલ ફિગર કમ્પ્લીટ થાય છે. માનવ પાત્ર એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ રીતે ફિનિશ થાય છે. 8મો ભાગ પતે છે ત્યાં આગળ ત્યાં આની પગની આંગળીઓ સુધી એ કમ્પ્લીટ થાય છે અને છેલ્લો જે આકાર છે માણસનો આ રીતે. માનવ પાત્ર માટે આપણે સૌ પ્રથમ ઈંડા આકાર એટલે કે માનવનો ચહેરો ઈંડા આકાર જેવો છે. ઈંડા આકાર જેટલા માથાથી લઈને પગ સુધી એના 7.5 થી 8 ભાગ પડતા હોય છે. તો આપણે શરૂઆત માથાથી લઈને પગ સુધી કરીએ તો સૌ પ્રથમ ઈંડા આકાર ગોળ દોરીશું આપણે. એનો પ્રથમ ભાગ છે. બીજા ભાગમાં એનો ગરદનનો થોડો ભાગ આવશે. હવે ખભાનો જે ભાગ છે બંને બાજુ એટલે ગોળ માથા જેટલો જ ભાગ બંને બાજુ આવશે. એક માથું આવે એટલું ખભા સુધીનો ભાગ આ રીતે આવશે. ત્યારબાદ બીજો ભાગ પૂરો થાય ત્યાં છાતીનો ભાગ આવશે. ખભાથી લઈને કોણી સુધીનો હાથ એનો ત્રીજા ભાગ જ્યાં પૂર્ણ થતો હોય ત્યાં સુધી આવશે. બંને બાજુ ત્રીજો ભાગ પૂરો થાય ત્યાં આગળ કોણી સુધીનો ભાગ આવશે. ત્રીજા ભાગ પૂર્ણ થાય ત્યાં આગળ ડૂટીનો ભાગ હોય છે. એની નીચે આપણે કમર પર ઇન્સર્ટ કર્યું હોય કદાચ કપડામાં તો આ રીતે દેખાય. હવે ત્રીજાથી ચોથા ભાગની અંદર આપણે હાથનું કોણીનો ભાગ કરે કાંડા સુધીનો ભાગ આવશે. હાથનો પંજો એ આપણા મોઢાના આકાર જેટલો જ હોય છે એટલે હાથના પંજાનો આકાર આપણે 5મા ભાગમાં આ રીતે બનાવીશું, પોણા ભાગ જેટલો. બંને બાજુ ચોથો ભાગ પૂરો થાય ત્યાં આગળ કાંડાનો ભાગ આવશે. 5મા ભાગમાં હાથનો પંજો આવશે આ રીતે. ચોથાથી 5મા ભાગમાં કમરથી સાથળ સુધીનો આવશે ભાગ
હવે છઠ્ઠા ભાગ સુધી ઢીચણનો ભાગ આવશે આ રીતે, અને છઠ્ઠા ભાગની વચ્ચે એટલે છઠ્ઠા ભાગમાં પાંચમા અને છઠ્ઠાની વચ્ચે કોણ આપણે ઢીચણનો ભાગ આવશે, અને સાતમો ભાગ છે તે પગની એડી સુધીનો આ રીતે. હવે આઠમા ભાગમાં એટલે સાતમાની ઉપર 7.5 જેટલું આવે ત્યાં આગળ તમારે એની પગની એડી સુધી ભાગ આવી જાય. હવે પંજો જે છે આઠમાની ભાગમાં આગળની બાજુ દેખાય એ રીતે આવે. આ સંપૂર્ણ થઈ ગયું માનવ પાત્ર. હવે આપણે ચહેરાનો ભાગ જોઈ લઈએ. ચહેરામાં આપણે સમજી ગયા તેમ આગળ 3 સરખા ભાગ, બંને બાજુ કાન, પ્રથમ ભાગમાં આઈબ્રો, એની નીચે આંખો, ભ્રમરો દેખાય, પછી આંખો, બીજો ભાગ પૂરો થાય ત્યાં આગળ નાક, બેની વચ્ચે ત્રીજા ભાગની વચ્ચે હોઠનો ભાગ, વાળ માથાની ઉપર અને માથાની અંદર આવશે આ રીતે. પ્રપોર્શનલી કાગળના પ્રમાણમાં માનવ આકૃતિ આપણે કેટલી દોરવી છે એ આપણા મનમાં ચિત્ર તૈયાર હોવું જોઈએ. મનથી નક્કી કરીએ કે આ કાગળમાં આટલા ભાગમાં માનવ પાત્ર, આટલા ભાગમાં ઝૂંપડી કે પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ આવશે. આ રીતે આખું માનવ પાત્ર અહીંયા 7.5 થી 8 ભાગમાં પૂર્ણ થાય છે. આ ચિત્ર છે ખેતરમાંથી પાછું ફરતું કુટુંબ, જે 2 માનવ પાત્ર છે, એક બાળક છે, સાથે પાછળ વૃક્ષ છે, ઘર છે, એનું કમ્પોઝિશન કરેલું છે. આવું ચિત્ર દોરી શકાય. ત્યાર પછી બીજું ચિત્ર વરસાદમાં રમતા બાળકો છે, છત્રી લઈને ઊભેલા હોય એવા. ત્યારબાદ વ્યવસાયકારનું ચિત્ર છે, સાવરણી બનાવનાર વૃક્ષ પાસે બેઠેલા હોય, સાવરણી બનાવતા હોય તેવા 2 માનવ પાત્ર છે, એક બાળક છે સાથે. આ કૂવા કાંઠે પનિહારી, જે કૂવામાંથી પાણી ભરતી સ્ત્રીઓ છે, 3 માનવ પાત્ર છે. પાસે વૃક્ષ દોરેલું છે, બેકગ્રાઉન્ડમાં વૃક્ષ, મકાન છે, પર્વત છે. નમસ્કાર. નમસ્કાર. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है. विद्यार्थी मित्रों, हमने कक्षा 8 में तेरी है ज़मीं, ईदगाह, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, उठो दरा के अमर सपूतों और सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के नाम की इकाइयाँ पढ़ी हैं. और इन इकाइयों के साथ साथ भाषा सज्जता के तहत लिंग परिवर्तन के कुछ नियम, वचन परिवर्तन के कुछ नियम, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, शब्दकोश का सही क्रम, ऐसी भाषा सज्जता की कई सारी प्रवृत्तियां या जानकारी भी प्राप्त की है. आज हम पुनरावर्तन 1 के तहत हमने भाषा सज्जता में जो जो सीखा है उनका यहाँ पर पुनरावर्तन करेंगे. यानी कि इन इकाइयों में हमने जो भी सीखा है उसकी हमारी समझ कितनी है उनकी जानकारी हम खुद लेंगे. यानी कि पुनरावर्तन भी होगा और साथ ही साथ हमने जो सीखा है
यहाँ पर हमारा मूल्यांकन भी होगा, और मूल्यांकन कौन करेगा, तो आप खुद ही करने वाले हैं। तो आइए यहाँ से पुनरावर्तन में हम देखते हैं, और पुनरावर्तन के लिए आप अपनी किताब निकालिए और वहाँ पर पुनरावर्तन में कौन से प्रश्न दिए गए हैं ये आपको देखने हैं और साथ ही साथ यहाँ समझने भी हैं। तो शुरुआत करते हैं पुनरावर्तन 1 की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं आपको कुछ शब्द दिखा रहा हूँ, आपको ये शब्द पढ़ने हैं। और पहला जो प्रश्न है, आपने किताब में देखा होगा कि पहला प्रश्न है कि भाई शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखना। तो ये किस प्रकार से होगा ये आप जानते हैं, और इसका एक अभ्यास हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। पहला शब्द है थोड़ा, गृह, निशा, पेट, राष्ट्रभाषा, फल, समीक्षा, सूर्य, आकार। ये शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपका काम यह है कि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखना है, और आपने यह अभ्यास तो कई बार किया है ना। तो अब आपको ये सोचना है कि सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा, तो ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द आएगा आकार। क्यों आएगा, तो ये भी आप जानते हैं कि शब्दकोश के क्रम में, यानी कि जब वर्णमाला की बात करते हैं और शब्दकोश की बात करते हैं तो वर्णमाला की शुरुआत भी हमेशा स्वर से होती है, और शब्दकोश की शुरुआत भी स्वर से होती है, और स्वर का क्रम हमें पता है। यानी कि जब शब्दकोश के क्रम में हम शब्दों को रखते हैं तो पहले स्वर वाले शब्द आएंगे, उसके बाद व्यंजन वाले शब्द आएंगे, इसलिए यहाँ पर आकार शब्द पहले आएगा। उसके बाद आएगा गृह। अब आपको लगेगा कि आकार के तुरंत बाद गृह क्यों आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क और ख से बना हुआ कोई भी शब्द हमने नहीं लिया है, इसीलिए तीसरा जो वर्ण है और उससे बनने वाला शब्द गृह यहाँ पर अ के या आ के बाद तुरंत आता है। इसी प्रकार तीसरा जो शब्द है वह है थोड़ा। अब आप ये समझ गए हैं कि भाई क्रमशः वर्णमाला में जिस प्रकार से वर्ण दिए गए हैं उसी क्रम में हमें यहाँ पर शब्दों को रखना है। चौथा जो शब्द है निशा, पांचवा शब्द आएगा पेट, छठा फल आएगा, और सातवां आएगा राष्ट्रभाषा, आठवां आएगा समीक्षा और सूर्य। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपने देखा और आप ये अच्छी तरह से शब्दों को जमा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद शब्दकोश का सही क्रम किस प्रकार से होता है, आइए इसकी जानकारी भी एक बार ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अभी कहा आपको कि शब्दकोश में पहले स्वर आएंगे, तो स्वर कौन कौन से हैं ये हमें पता है। एक बार दोहरा लेते हैं, एक बार और अभ्यास कर लेते हैं। तो अम, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। आप भी मेरे साथ दोहराते जाइए और बोलते भी जाइए, ये क्रम हमें पता है। यानी कि जब भी हम शब्दकोश के क्रम में स्वर से बने हुए शब्द रखेंगे तो इन्हीं क्रम में आने वाले हैं या हमें रखने हैं। इसी प्रकार से व्यंजन देख लेते हैं। वर्णमाला का क्रम आपको पता है ना, हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ नए वर्ण आपको देखने को मिलेंगे, और ये क्यों है ये भी हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, तो पहला क और उसके तुरंत बाद आप बोलने वाले थे ख, लेकिन यहाँ पर तो कौन सा है, क्ष है। तो क्यों है, क्योंकि क्ष एक संयुक्त वर्ण है और वह क और श से बना हुआ है, इसलिए वर्णमाला में हम भले उसका क्रम अंतिम रखते हैं क्ष और ज्ञ, लेकिन यहाँ पर शब्दकोश के क्रम में क के तुरंत बाद ही हमें क्ष से बने वाले शब्द रखने पड़ते हैं। यानी कि शब्दकोश का सही क्रम ये रहेगा क और उसके बाद तुरंत क्ष, क्योंकि क्ष क्या है, संयुक्त अक्षर है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। ख, इन वर्णों का उच्चारण आप करते जाइए, जहां संयुक्त वर्ण आएगा मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ऐसा क्यों। देखिए, अब ये ज है और ज के तुरंत बाद अब क्या आएगा, तो ज आएगा, लेकिन वो वर्णमाला में होगा। हम यहाँ पर शब्दकोश का क्रम देख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, कोई बताएगा? हाँ, यहाँ पर ज्ञ आएगा। क्या आएगा, ज्ञ।
क्यों ऐसा हुआ? तो भाई ज्ञ एक संयुक्त वर्ण है और ज्ञ बना है ज और इ से। अब इ का मतलब क्या होगा? तो जो दूसरा वर्ग है उसका पांचवा जो अनुनासिक है, जिसका उच्चारण वैसे तो अनुनासिक का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होगा, लेकिन हम समझ के लिए उसको इ से पहचानते हैं, यानी कि ज्ञ बना है ज और इ से, तो ये भी हमें समझना है। उसके बाद ज आएगा, उसके बाद वर्णमाला के जो भी वर्ण है ट ठ ड ढ अण त। अब देखिए त के बाद आया त्र। आपको ये लगेगा कि ये भी क्या संयुक्त वर्ण है? तो हाँ, ये भी संयुक्त वर्ण है, ये भी बना है त और र के जुड़ने से। तो यानी कि त वाले शब्दों के तुरंत बाद हमें त्र वाले शब्द वहां पर रखने हैं, जोड़ने हैं। उसके बाद है थ, उसके बाद आएगा द, उसके बाद द न प। आप बोलते जाइए और क्रम को याद रखते जाइए। आपको ये क्रम याद ही है, फ ब प म य र ल व श। अब देखिए यहां पर इसके बाद कौन सा वर्ण आएगा? कौन सा आएगा? तो देखिए यह है श्र, और यह भी क्या है? संयुक्त वर्ण है ना। और यह कैसे बना है? तो यह बना है श और र के जुड़ने से। तो इसका क्रम श के तुरंत बाद है श्र, उसके बाद श और उसके बाद आएगा स, और उसके बाद अंतिम जो वर्ण है आएगा ह। यहां पर आपने देखा कि हमने 4 संयुक्त वर्णों के बारे में जाना, और अब आपको ये याद भी रखना है क्ष, ज्ञ, त्र और श्र, और इनसे बनने वाले शब्द कौन से क्रम में रखने हैं ये आपको समझ लेना है। और इसी प्रकार से जब भी हमें शब्दकोश के क्रम में शब्दों को रखना है तो हम रखेंगे। आइए एक और उदाहरण के जरिए इन्हीं क्रम को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर क से बनने वाले कुछ शब्दों को मैंने यहाँ रखा है, और वर्णमाला और शब्दकोश में क्या भेद है जो हमने अभी बात की है, और शब्दकोश के क्रम में ये सारे शब्द किस प्रकार से आएंगे, इसका एक उदाहरण है। मैं यहाँ थोड़ी देर उन शब्दों को रखता हूँ, आपको देख लेना है, समझ भी लेना है। तो देखते जाइए। ये कंगाल है, पहले क वाले वर्ण आएंगे, यानी कि क से बनने वाले शब्द आएंगे, लेकिन यहाँ तो कम वाला है, यानी कि क पर एक बिंदी अनुस्वार है। और गुजराती और हिंदी शब्दकोश में ये भेद है कि गुजराती में हमेशा क वाले शब्द आएंगे और कम वाले बाद में आएंगे, लेकिन हिंदी की विशेषता है कि हिंदी में अनुस्वार वाले शब्द पहले आएंगे, यानी कि कंगाल पहले आएगा और कमल बाद में आएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए कंगाल के बाद कौन सा शब्द है? यहाँ पर कपूर है। आप गुजराती में करेंगे तो ये भेद आपको पता होना चाहिए। गुजराती में क्या होगा? तो पहले कपूर आएगा और बाद में कंगाल आएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से तीसरा क के बाद आएगा का, यानी कि कारावास, किलकारी, कीर्ति, कुदाल, कूप, कृषि। देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, कुदाल और कूप के बाद आया कृषि। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये ऊ और ऊ तो हमें पता है, लेकिन ये क्री कहाँ से आया? तो ये क्री बना है री के जुड़ने से। और देखे थे ना, अ आ ई उ और रे, तो यहाँ पर भी इसी क्रम में है, और क्री बना है री के जुड़ने से। और इसीलिए गुजराती में हम बोलते हैं तो कृषि बोलते हैं, लेकिन जब हिंदी में बोलेंगे तो इसका उच्चारण होगा कृषि। तो आप ये समझ गए हैं, कृषि। उसके बाद आएगा केतकी, उसके बाद आएगा कैदी, क के बाद कई, उसके बाद आएगा कोरा या कोयल, जो भी को ओ से बनने वाला वर्ण है, और उसके बाद आएगा कौतुक। तो ये क्रम आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। और इतनी जानकारी के बाद आपको कोई भी शब्दकोश के क्रम में रखने को बोला जाए तो आप अच्छी तरह से इनको जमा सकते हैं, रख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपने
शब्दकोश के क्रम के साथ साथ लिंग और वचन के कुछ नियम भी जाने थे। याद है ना, हमने सारे नियम के बारे में जाना था कि भाई आकारांत है तो उसका जब लिंग परिवर्तन करते हैं तो क्या होगा, और उसी समय हमें यह भी ध्यान में रखना है कि भाई ये पुल्लिंग शब्द है, यानी कि आकारांत पुल्लिंग है, आकारांश स्त्रीलिंग है, और उसका परिवर्तन हम किस प्रकार से करेंगे यह आपने सीखा है। उसके सारे नियम हमने सीखे। तो आइए उसके भी कुछ उदाहरण यहां पर देखते हैं। यहां पर आपके लिए सूचना है कि इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग कीजिए। और लिंग परिवर्तन आप समझ चुके हैं। यहां पर मैंने कुछ ही उदाहरण दिए हैं, और साथ ही साथ सूचना क्या है कि लिंग परिवर्तन करने के बाद उन शब्द का हमें वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो देखिए किस प्रकार से हो सकता है। जैसे कि एक शब्द यहां पर दिया गया है युवक, और उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा, युवती, और वाक्य मैंने यहां पर रखा है वह युवती पढ़ने और खेल में होनहार है। देखिए यहां पर आपको यही वाक्य नहीं लिखना है, यह सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ के लिए है कि इस प्रकार से हम युवती शब्द का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप इससे भी भिन्न वाक्य बना सकते हैं, और एक ही शब्द का प्रयोग करके कई सारे वाक्य भी बना सकते हैं। यानी कि युवक का लिंग परिवर्तन क्या होगा, यहां पर युवती हुआ। आइए दूसरा शब्द देखते हैं, छात्र। अब सोचिए जरा, छात्र का लिंग परिवर्तन क्या होगा, हाँ छात्रा। छात्रा ने अपना गृह कार्य शिक्षक को दिखाया। इस प्रकार से इस वाक्य को आपको सही रूप में रखना है। तो ये उदाहरण है, हमें जानबूझकर हमें ये सीखना है कि किस प्रकार से इन शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है, और आपको इन उदाहरणों के जरिए और भी वाक्य बनाने हैं। आइए तीसरा शब्द देखते हैं, पंडित, और इसका लिंग परिवर्तन क्या होगा, जरा सोचिए। तो पंडिताइन है ना, पंडित तो पंडिताइन, और पंडिताइन से जुड़ा हुआ कोई वाक्य आप जरा सोचिए। हाँ, यहां पर एक उदाहरण देख लीजिए, पंडिताइन पूजा करके प्रसाद बांट रही है। पंडिताइन पूजा करके प्रसाद बांट रही है। इसी प्रकार से आप और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि पंडिताइन मंदिर की ओर जा रही है, पंडिताइन पूजा कर रही है, आज पंडित और पंडिताइन मेरे घर आए थे। जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन हमें यह सीखना है कि इन शब्दों का वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग हम कर सकते हैं। धन्यवाद।